Hello everyone. So today's problem statement is create a microservice to store and throw error details in HTTP servlet request attribute. So the curl commands for this, let's do the testing and then we'll get the idea of how this is being used. Okay. So this dummy microservice is created to validate the ticket. So we in the header we are sending this ticket number ABC345. We are expecting that ticket should be started with ABC and the size of the ticket number should be less than 9. So let me start this application. Okay. So because ये valid ticket number है तो we got a success message that ticket number validation successful ABC349. Now we'll go to this error response. So first I'll do not give any ticket number. अगर कोई टिकट नंबर हम नहीं देते हैं तो एरर आ गया. लिस्ट ऑफ एरर्स आई एम कैप्चरिंग. सो एरर कोड दिया है 101 and error message is ticket number is missing and it will be a 400 bad request. Okay. अभी second error cases है. suppose अगर if we give a ticket number which is greater than the size of 9, then we'll get a error code with error message that invalid ticket number है with the size must be less than 9. Another error handling which I did is the ticket must start with ABC. So if I give this ticket number, so it is giving me that invalid ticket number must start with ABC. Now this is individually error handling we did. Now if I have not given ABC, if the ticket number is not starting with ABC and size is greater than 9, then it will give me both the error messages. It will capture all the error. Basically this is the case कि एक से ज़्यादा error validation if we want to throw तो it is able to do. See, error code error message came कि size is less must be less than 9 and it must start with ABC. So these are the error cases we handled. Now we'll go and see how did we handle it. Generally how we can do is normally if else condition लगा दो, error cases है और errors capture करके throw कर दो, right? But if we do not want to keep that validation, हमें वो चीज़ों को सारी error cases को individually if else करके store नहीं करना. What we want to do is, if I'll go to the utility, मुझे क्या करना है कि HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट हमारे पास होता है, राइट? सो उसमें एक एट्रीब्यूट में मुझे मेरे एरर्स को स्टोर करना है. आई डोंट वांट टू कीप क्योंकि अगर सपोज कंट्रोलर लेयर से मैं यहाँ पे गई एंड देन यहाँ पे एक वैलिडेशन थ्रो हो रहा है. सपोज यहाँ पे एक चेक हुआ है कि टिकट नंबर इज़ एम्प्टी, ठीक है. अब वो एम्प्टी टिकट नंबर है, ये एक एरर केस है. मुझे इस एरर को स्टोर करना होगा पहले. फिर सेकेंड वैलिडेशन में, दिस वैलिडेशन में भी मुझे उसको पास करना पड़ेगा कि टू स्टोर. पहले एरर कोड 1 स्टोर, एक एरर फर्स्ट एरर स्टोर होगा लिस्ट में, फिर सेकेंड एरर स्टोर होगा, फिर थर्ड एरर स्टोर होगा. तो मुझे हर मेथड में उस एरर को उस एरर पैरामीटर को पास ऑन करना पड़ेगा, लिस्ट ऑफ एरर्स पैरामीटर को पास ऑन करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू स्टोर इट. ये एक छोटा प्रोग्राम है, इसमें फ़र्क नहीं पड़ता. बट व्हेन देयर इज़ अ ह्यूज प्रोजेक्ट एंड बहुत सारे मेथड होते हैं तो पूरे प्रोजेक्ट में तुम एरर्स को पास ऑन करोगे इंडिविजुअल ईच मेथड में. इट विल बी एड ऑन पैरामीटर इन एवरी मेथड कॉल्स. वो सही नहीं है. तो हमने क्या किया, रिफ्लेक्शन का यूज़ करके इस गेट HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट को यूज़ किया है. उससे क्या होगा, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट में एक एट्रीब्यूट की एज एरर. व्हाट इज़ द की? की इज़ ERRORS. it will be key and whatever I want to store. suppose I am doing here get HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, सेट करो एट्रीब्यूट, की दे दो एरर्स और जो भी एरर तुमने थ्रो कर रहे हो उसे स्टोर कर लो. डिटेलेशन में बताती हूँ 2 मिनट. सो लेट मी वॉक थ्रू फ्रॉम स्टार्टिंग. ये मैंने बताया कि व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ डूइंग इन दिस वे. फर्स्ट लेट मी गो थ्रू द कोड.
सो दीज आर द टू वैलिडेशन. फर्स्ट वैलिडेशन इज़ कि एरर टिकट एम्प्टी नहीं होनी चाहिए. वी हैव सीन दैट राइट. तो अब टिकट एम्प्टी नहीं होनी चाहिए. अगर टिकट एम्प्टी है तो हम लोग ने एक मेथड बनाया ऐड एरर टू लिस्ट. सो यहाँ पे एरर कोड एरर मैसेज को हम कैप्चर कर रहे हैं और और हम चेक कर रहे हैं कि HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट में जो एरर्स करके हमने एट्रीब्यूट बनाया है, दैट की वैल्यू इज़ इफ़ दैट इज़ प्रेजेंट और नॉट, इफ़ दिस इज़ एम्प्टी और नॉट. इफ़ दिस इज़ एम्प्टी तो हम फ्रेश एक एरर बनाएंगे, एरर का लिस्ट, और उसमें एरर कोड एरर मैसेजेस को स्टोर कर लेंगे विद एरर, एंड देन उसे की एज एरर एंड वैल्यू एज जो भी एरर हमारे पास आया है उसे स्टोर कर लेंगे. इफ़ दिस इज़ नॉट एम्प्टी, इफ़ दिस इज मतलब एक एरर ऑलरेडी उसमें एडेड है, अब दूसरा एरर मुझे अपेंड करना है, तो दूसरे एरर को मैं क्या करूँगी, लिस्ट में ऐड कर दूँगी कि ठीक है गेट वैलिडेशन एरर. यहाँ से हमने उसकी की वैल्यू को ले लिया है, कीज़ एरर, एंड देन उसमें मैं ऐड कर रही हूँ मेरा एरर डिटेल्स की को बिल्डर की तरह क्रिएट करके. नाउ आई एम एडिंग इट. ऐसे अगर फ्रेश है तो वी आर क्रिएटिंग द एरर डिटेल लिस्ट एंड स्टोरिंग इट फ्रेश इनटू द HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट. बट अगर ऑलरेडी एक स्टोर्ड है तो वी आर गोइंग टू अपेंड ओनली. इससे क्या हो रहा है, मुझे दिस इज प्लेइंग विद द एट्रीब्यूट ऑफ HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट राइट. सो मुझे उस लिस्ट ऑफ एरर्स को सारे पैरामीटर में पास ऑन नहीं करना पड़ रहा, विच इज़ वेरी गुड. ओके, so this is how the validations are written. If I'll go to individual validations, so वही है कि कॉमन ऐड एरर, मतलब बेसिकली जो भी एरर कोड है एरर मैसेज डालो और ऐड एरर्स टू लिस्ट कर दो. now similarly we have this ticket validator validation. इसके अंदर वो validation है कि size should be less than 9 and the ticket number should start with ABC. so ये दोनों validation इधर भी सेम तरीका कि add error to list, error code error message भेज दो. now why this error code and error messages, if you see this okay I'll come that. हाँ, once this validations has walked through, तो अगर एरर हो गए तो इट विल बी स्टोर हो गए HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट एट्रीब्यूट में, नहीं होंगे तो इट वुड बी एम्प्टी राइट. सो नाउ ये मेथड हमने बनाया है वैलिडेट एरर्स. तो वो वैलिडेट कर रहा है, वो रीड कर रहा है कि गेट द वैलिडेशन एरर्स. सिमिलर ये मेथड एरर्स की को पास करके उसकी वैल्यू ले रहे हैं. अगर वैल्यू एम्प्टी है यानी कि कोई एरर थ्रो नहीं हुआ है तो विल नॉट थ्रो एनी एरर. इफ़ इट इज़ नॉन नल तो फिर वी विल थ्रो दिस वैलिडेशन एक्सेप्शन. नाउ दिस वैलिडेशन एक्सेप्शन हमारा कस्टमाइज खुद का बनाया हुआ एक्सेप्शन है. इसमें हम लोग लिस्ट ऑफ एरर डिटेल्स को ले रहे हैं. इफ़ यू सी हमने यहाँ पे लिस्ट था राइट, द एरर्स थे एंड इसके अंदर एरर कोड एरर मैसेजेस थे. सो सिमिलरली वी हैव केप्ट दिस लिस्ट बिकॉज in real scenario there could be multiple errors thrown at the same time right. and a handler has been written for this. तो इस हैंडलर में वही है कि वैलिडेशन एक्सेप्शन हम जो भी भेज रहे हैं वहाँ से वो मल्टीपल एरर्स को रीड कर रहा है. हम लोग बैड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, यहाँ पे हमने देखा 400 बैड रिक्वेस्ट थ्रो हो रहा है, तो बैड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं और जो भी एरर रिस्पॉन्सेस को स्टोर कर ले रहे हैं. तो या दैट्स ऑल. So the main and best benefit of this is the whole project में वो list of errors. So this is what that here we created this list of errors ना. this list of errors बनाया और उसको store कर दिया and then this object is not needed right. लेकिन अगर if we do not do this way तो हमको सारे मेथड्स में मैंडेटरी सारे वैलिडेशंस में जितने भी मेथड्स है, जितने भी मेथड कॉल्स है, द होल प्रोग्राम वी हैव टू पास ऑन दिस एरर लिस्ट ऑफ एरर डिटेल्स एंड नीड टू स्टोर ऑल द एरर्स वेरेवर इट इज़ थ्रोन. एंड एट द एंड वी हैव टू सी if this error list is empty or not, and that way we have to throw the validation, which is not that, like, this approach is better than that right. Yeah, so that is how it is. Thank you.